Hello, good afternoon friends. Last lecture we have discussed some basic concept about the solution. Today we will discuss next points, that is the types of solution. You know, the solution is a mainly consists by the two component. One is a solute and another one is a solvents. The physical state of the solute and solvent is maybe solid, liquid and gas. Therefore, on the basis of the physical state of the solute and solvent, the solution is classified into the 9 types. ओके अभी आपको सॉल्यूशन के कौन से 9 टाइप है वो आपको वन बाय वन क्या करना है, स्टडी करना है. उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. Here is a serial number, types of solution, solute, solvent and example. इस तरह से सबसे पहले आपको चार्ट प्रिपेयर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल that is a gaseous solution. In gaseous solution is a mainly 3 types. That is the first one is a gas in gas. Here is a both solute and solvent is a present in the gaseous state. For example, mixture of non-reacting gas, air and vapors. This is an example of the gas in gas. Second type is the liquid in gas. Liquid in gas, the solute is a liquid and solvent is क्या है, गैस है. फिर उसके एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन्स. Another one is a water vapors in air. This is an example of the liquid in gas. In this example is the both gas is the क्या है, solvent है. Third type is that is a solid in gas. Solid in gas में solute solid है और solvent क्या है, गैस है. उसके एग्जाम्पल देना है तो फॉर एग्जाम्पल सब्लिमेबल सॉलिड लाइक कैम्फर, आयोडीन. आपको कैम्फर पता है, उसे कापुर कहते हैं. Next example, smoke in air, and last one is that is a dust. This is the 3 types of the gaseous solution. Next one is that is a liquid solution. In liquid solution is also 3 types. The first one is a gas in liquid. In the gas in liquid, the gas is solute and liquid is क्या है, solvent है. उसका एग्जाम्पल क्या है देखिए, ऑक्सीजन इन वाटर्स, another carbon dioxide in water, soda water. This is the example of the gas in liquid. In this example the liquid क्या है, solvent है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का प्रोपोर्शन किसके कंपेयर में ज्यादा है, गैस के कंपेयर में ज्यादा है. नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड. हियर इज अ बोथ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल पता होंगे लिक्विड इन लिक्विड के. दैट इज अल्कोहल इन वाटर, गैसोलीन, मिल्क इन वाटर. हियर इज अ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट में है. नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड. हियर इज अ सोल्यूट इज अ सॉलिड एंड सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, यूरिया इन वाटर. नेक्स्ट sea waters, benzoic acid in benzene. These all example of the solid in liquid. And last type is that is a solid solution. In solid solution is also include 3 types. The first one is a gas in solids. Gas in solid में gas is solute and solid क्या है, solvent है. उसका एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन गैस इन पैलाडियम मेटल. देन प्यूमाई स्टोन, आपको प्यूमाई स्टोन पता होगा, उसे आप गारगोटी कहते हैं. वो क्या करता है, ज्यादा गैस एब्जॉर्ब करता है और कम गैस रहता है और ज्यादा कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है. नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड. हियर इज अ लिक्विड इज अ सोल्यूट आणि सॉलिड इज कौन है, सॉल्वेंट है. उसका एग्जांपल देखिए, सोडियम अमलगम. अमलगम ये लिक्विड में, मर्क्यूरी लिक्विड में रहती है और सोडियम किस में रहता है, सॉलिड में रहता है. मर्क्यूरी इन जिंक.
and another one is hydrated salt. Okay, you know the hydrated salt, those salt is a present the some amount of the water, but in the salt less amount of the क्या रहता है, water रहता है, therefore liquid is a यहाँ पे क्या है, solute है. And last one is a solid in solid. Here in the solid in solid, the both solute and solvent is a present in the किस में है, solid में है. फॉर एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल देना है तो फॉर अलॉयज, यू नो द डिफरेंट अलॉय, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील्स. नेक्स्ट वन इज अ एग्जाम्पल, यू नो कलर ग्लास एंड आल्सो जेम्स. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड. This is the 9 types of the solution, and this type of the solution is based on the physical state of the solute and solvent. ये आपको टाइप्स अच्छी तरह से रिमेम्बर करना है, क्योंकि नीट एग्जाम में या JEE एग्जाम में इसके ऊपर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये टाइप अलग अलग जो सॉल्यूशन के टाइप्स है उसके नंबर ऑफ क्या पता होना चाहिए एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा सोल्यूट है और कौन सा क्या है, सॉल्वेंट है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अभी देखेंगे, गिव द हेडिंग. अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग. हेडिंग लगवाइए पहले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स. अभी आपको जो पॉइंट देखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माय कॉन्सेंट्रेशन. फिर यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं पता होना चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट is dissolved in the total quantity of the solvents या solution. each क्वाड उसे क्या कहते हैं, concentration कहते हैं. what is my concentration? the amount of the solute is dissolved in the total quantity of the solvent या solution. each क्वाड उसे क्या कहते हैं, concentration कहते हैं. the concentration of solution, देखिए concentration of solution क्या फार्मूला उसका, concentration of solution is equal to amount of solute divided by quantity of solvents या solution. ये आपको फार्मूला ख्याल में रखना है. कोई सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन. दैट इज नोन एज, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन is expressed by the solution का concentration. ये अलग अलग क्या वे से एक्सप्रेस किया जाता है. फिर अभी आपको concentration किस तरह से डिटरमाइन करना है उसके क्या करना है, वेज का स्टडी करना है. the ways of the expressing the concentration of the solution, ways of the expressing the concentration of the solutions, they are the sum is the कुछ ways, the sum ways is the related to the कुछ ways. किसको रिलेटेड रहते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड रहते हैं. किसको रिलेटेड रहते हैं, वॉल्यूम को रिलेटेड रहते हैं. आणि सम वेज इज द क्या है, मास को रिलेटेड रहते हैं. ways of the expressing the concentration of the solution, they are some ways is the वॉल्यूम रिलेटेड है
आणि सम वेज इज द, ये किसको रिलेटेड रहते हैं, मास रिलेटेड. दी वॉल्यूम रिलेटेड वेज इज अ बेस ऑन द, ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं. टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहते हैं. आणि दी मास रिलेटेड वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहते. दैट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. जो वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम को रिलेटेड है, वो किसको डिपेंड रहता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. आणि जो वे मास को रिलेटेड है वो टेम्परेचर को क्या नहीं रहते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते. दैट इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. द वॉल्यूम रिलेटेड वेज इज द, वॉल्यूम रिलेटेड फर्स्ट वेज इज द, दैट इज अ परसेंटेज बाय वॉल्यूम. सेकंड वन इज अ, दूसरा है परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम. Third one is a, that is a molarity, molarity. Fourth one is a, that is the normality. ये पूरे के पूरे वेज ये किसको रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड है. एंड दिस वेज इज द किसको डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है. आणि दी मास रिलेटेड वेज इज द फर्स्ट वेज इज द मास रिलेटेड, दैट इज द, देखिए, परसेंटेज बाय मास, किसको, परसेंटेज बाय मास. सेकंड वन इज दैट इज द मोलालिटी. थर्ड वन इज तीसरा देखेंगे, दैट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन. एंड लास्ट वन इज दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. दिस इज अ डिफरेंट वेज to expressing the concentration of the solution. This term we have already discussed in the 11th standard, but here is of course, यहाँ पे क्यों स्टडी किया, इसके ऊपर आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा. वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आपको सिर्फ नीट आणि अभी कौन से एग्जाम में आएगा, दैट इज अ JEE एग्जाम में आएगा. ओके, फिर अभी यहाँ पे आपको 1 by 1 थोड़ा जस्ट इंट्रोडक्शन बोल के आपको इसका क्या करना है, स्टडी करना है. दैट इज अ फर्स्ट वन इज, सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज बाय मास. दिस कंसेप्ट we have discussed in the next lecture. इसका स्टे आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, गुड डे.